Hello students, today I'm going to start our fifth chapter from the book Beehive, The Snake and the Mirror. Students, I have skipped one poem, The Lake Isle of Innisfree, and I will merge this poem in the with the next poem in a video. We will do The Snake and the Mirror, which is written by Waqom Muhammad Bashir. And at first, I will tell you about the writer, author of this chapter, Muhammad Bashir. He was a renowned author from the state of Kerala. He was humanist, freedom fighter, novelist, and short story writer. He catered to the needs of the common man in his writings. He was awarded with the Padam Shri in 1982. The Snake and the Mirror chapter is based on the theme of vanity. Man is proud of his physical beauty, that at times he is often foolish and stupid in his attempt at estimating himself. The author is trying to explain through this lesson that it is important for us to live in a real world and not in one that is fictitious. Before going through this chapter, I will tell you the outline of the story. This story is about a doctor who is a young bachelor homeopathic doctor who is conscious to how to look smart. He escapes uninjured from an encounter with a snake due to his presence of mind. In the story, the narrator, who is a doctor, explains his experience with the snake. It was a hot summer night when he used to live in a room in the village. And when he came to his room, it was about 10 o'clock. The doctor was sitting in a chair in his room, in his house. It was about 10 o'clock. And at night, he was wondering how to look more handsome. And as he washed his face in a mirror, he was thinking about his beauty. He decided that he would shave daily, keep a thin mustache, and always have a smile on his face. Uh, and he decided that these measures would make him look smarter and more handsome. He heard a noise. There were many rats in the room that constantly made noise. So he was not worried about that noise. Suddenly, a snake fell on the doctor's shoulder from above. It may have come into the house due to the presence of many rats there. The snake coiled round doctor's left arm above the elbow. The snake's hood was only 3 to 4 inches away from the doctor's face. The doctor turned absolutely still in the face of danger so close by. He prayed to God that then realized that he was a foolish and stupid doctor as he didn't have any medicine for snake bite with him, and thus he would surely die if the snake bit him. Doctor, when the snake turned its hood, it saw its reflection in the mirror of the table. The snake unwound itself from the doctor's arm and crept over the table to have a closer look at itself. The doctor thus got an opportunity to escape from the house. He ran very fast and went to a friend's house. After bathing there, he spent the night and at the friend's place. The next morning, the narrator went to his room with his friend as he had decided to vacate the house immediately. He went to collect his belongings. However, he found that some thieves had stolen most of his belongings, leaving behind only one of the doctor's dirty vests. So, through this chapter, we came to know that there was a doctor who was very proud of his beauty, and he decides to change something in his to look more handsome. He takes two earth-shaking decisions, like he would shave daily, he would keep a thin mustache to look more handsome. But when he was thinking about that, snake fell on his shoulder.
एक सांप जो उसके कंधे पर आकर के गिर जाता है और अपने आप को जो है उससे लपेट लेता है, कॉइल कर लेता है, और इस वजह से जो है डॉक्टर वहाँ से हिल नहीं पाता है। और डॉक्टर अपने आप को उस टाइम पे रियलाइज़ करता है, जो थोड़ी देर पहले क्या रियलाइज़ कर रहा था कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है। लेकिन अब उसको रियलाइजेशन होता है कि वो एक बहुत ही स्टूपिड और इडियट है, क्योंकि उसके पास कोई दवा नहीं और ना ही उसको किसी दवा का पता है कि अगर कोई सांप के काटने पर कौन सी दवा जो है यूज़ की जानी चाहिए। And he tells this story in a very humorous way. This is very frightening story, but he made it humorous by his way of telling, way of narrating. So I'm going to start this chapter. Before you read, do you like to look at yourself in the mirror? It's obvious that everyone likes to look at oneself in the mirror. What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, a cat, or a bird look into a mirror? What do you think it sees? यहाँ पर जो नरेटर है उन्होंने आपसे रीडर से क्या पूछा है कि क्या आपने कभी अपने आप को शीशे में देखा है, शीशे में देखना पसंद करते हो, और अब जब ऐसे टाइम पर आप देखते हो तो क्या सोचते हो कि आप अपनी ब्यूटी को कैसे इंक्रीज़ करोगे? क्या आपने कभी किसी जानवर को, जैसे किसी कुत्ते को, किसी बर्ड को मिरर में देखते हुए देखा अपने आप को? और अगर कभी आपने किसी जानवर को, किसी पक्षी को जो है अपने आप को शीशे में देखते हुए देखा है, तो आपके मन में क्या आता है कि अपने बारे में क्या सोच रहा होगा? Now read this humorous story about a doctor and a snake and a mirror. अब हम एक बहुत ही मजाकिया फ़नी जो स्टोरी पढ़ेंगे, किसके बारे में? हास्यात्मक जिसको हम कह सकते हैं, डॉक्टर, सांप और एक शीशे के बारे में। हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या किसी सांप ने अपने आप को तुम्हारी किसी बॉडी पार्ट पर कॉइल किया है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक पूरा बड़ा जो है कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट, हम सारे जो है इस बात पर चुप हो जाते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, और हम जो है होम्योपैथी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और तभी जो है उससे स्नेक्स का कोई जिक्र हुआ और वहीं से जो है ये क्वेश्चन उठा। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। और जब डॉक्टर ने अपनी कहानी बताना शुरू किया, अपना किस्सा बताना शुरू किया, तो हम जो है बड़ी अटेंटिवली उसको सुन रहे थे। इट मीन्स व्हाट इज़ दिस टेलिंग अस दैट दे ऑल फ्रेंड्स वर सिटिंग इन अ ग्रुप, इन अ सर्कल, and they were discussing about the homeopath and snakes. Then a question arose that has a snake ever coiled itself around any part of your body? This question was put by the doctor, and he started to tell his tale. It was a hot summer night about 10 o'clock. गर्मी की रात थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 10 बजे थे रात के। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मैंने रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया और मैं अपने कमरे पर वापस आ गया। आई हर्ड ए नॉइज़ फ्रॉम अबो एज आई ओपन द डोर। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे जो है ऊपर से आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज फैमिलियर वन, आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। वन कुड से दैट द रेट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। एक कोई कह सकता है, कोई भी ये मान सकता है कि मैंने और चूहों ने जो है रूम शेयर कर रखा था। इट मीन्स दैट डॉक्टर वॉज थिंकिंग दैट दिस नॉइज़ वॉज मेड बाय द रेट्स। आई टुक माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने जो अपना माचिस बॉक्स निकाला और उससे जो है हमारा केरोसिन लैम्प उसको टेबल पर ऑन करके रख दिया, जला करके रख दिया। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। हाउस जो था उसमें बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, ये एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप अ मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। मैंने मेडिकल प्रैक्टिस अभी शुरू ही की थी और मेरी जो कमाई थी वो बहुत थोड़ी थी। मीगर मीन्स वेरी स्मॉल। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, और मेरे पास सूटकेस में केवल 60 रुपये थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, आई ऑल्सो पजेस्ट वन सॉलिटरी बैक कॉट विच आई वॉज डन वेयरिंग। मेरे पास जो है कुछ शर्ट्स और धोतीज़ थी,
और उसके अलावा जो है मेरे पास एक अपना बड़ा कोट था, ब्लैक कोट, जिसको मैं उस समय पे पहने हुए था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना ब्लैक कोट उतार दिया, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग दैम अप, अपनी जो वाइट शर्ट थी उसको उतार दिया, और जो मेरी वाइट जो ज़्यादा सफ़ेद बनियान थी, वेस्ट मीन्स बनियान, उसको भी उतार करके जो हमको टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, मैंने जो है खिड़कियों को खोला कमरे में। इट वॉज इन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग इन ओपन यार्ड, एक जो है बाहरी कमरा था जिसकी एक दीवार जो है ओपन यार्ड को फेस कर रही थी, बाहर के जो खुला एरिया था, जो बालकनी थी उसमें। इट हैड अ tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall, ये एक tiled roof थी जो किससे सपोर्ट की गई थी, लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम, जो कि बीम पर टिके हुए थे, ओवर द वॉल। देयर वॉज नो सीलिंग, इस कमरे की कोई छत नहीं थी क्योंकि ये जो है स्लॉपिंग रूफ थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और हम मेरे कमरे में जो है रेगुलर ट्रैफिक जैम रहता था रैट्स का, क्योंकि जो है बीम से जो है चूहे ऊपर नीचे आना जाना रखते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बेड तैयार किया और इसको जो है दीवार के पास खींच दिया। आई ले डाउन बट आई couldn't स्लीप, मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं सका। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वेरांडा फॉर ए लिटिल एयर, मैं खड़ा हुआ और वेरांडा में गया ताकि जो है थोड़ी हवा ले सकूं। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, पर ऐसा लगा जैसे पवन देवता ने भी अपना वहाँ से जा चुके थे, उनका भी समय वहाँ पर ख़त्म हो गया था। इट मीन्स गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से जो है हवा भी नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं वापस कमरे में आ गया एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पर बैठ गया। ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, और मैंने टेबल के नीचे से एक बॉक्स जो है उसको खोला और उसमें से एक बुक निकाली, द मटीरिया मेडिका, इट मीन्स मेडिकल मटीरियल। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror, and on the table where he was sitting with the book, there were 2 things also. Other 2 things were a lamp, and which he lighted, and a large mirror, and a small comb which was laying beside the mirror. और इस तरह से जो क्या बताता है कि इस टेबल पर एक लैंप था जिसको उसने अभी थोड़ी देर पहले जलाया था, एक बड़ा मिरर था और उसके पास एक छोटा सा जो है कॉम भी था। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन, अगर किसी के पास शीशा रखा हुआ हो तो वो जो है बड़ा इच्छुक हो जाता है एक बार शीशा देखने के लिए। आई टुक अ लुक, मैंने भी जो है शीशे में देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों में तो मैं जो है ब्यूटी का बहुत बड़ा एडमायरर था। एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं अपने आप को जो और भी ज़्यादा स्मार्ट बनाने की कोशिश में लगा रहता था। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, मैं अनमेरिड था, बैचलर था, एंड I was a doctor also. I felt I had to make my presence felt, और मैं सोचता था कि मुझे जो है अपनी प्रेजेंस, अपनी पर्सनैलिटी को जो है बड़ा इम्प्रेसिव बनाना चाहिए। I picked up the comb and ran it through my hair, मैंने कंघा उठाया और अपने बालों में से उसको घुमाया। And adjusted the parting so that it looked straight and neat, और जो बाल बिखरे हुए थे उनको एडजस्ट किया ताकि जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट और सुंदर दिखाई दे। अगेन आई हर्ड द दैट साउंड फ्रॉम अबोव, फिर से मुझे वही साउंड जो है ऊपर से सुनाई देती है। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने जो है अपने चेहरे को मिरर में बड़े ध्यान से देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया। आई वुड शेव डेली, मैं डेली जो है शेविंग करूँगा, और एंड ग्रो ए थिन मुस्टेच टू लुक मोर हैंडसम, और हल्की दाढ़ी उगाऊँगा, मूछें उगाऊँगा, सॉरी मुस्टेच मीन्स मूछे, जिससे वो और भी ज़्यादा हैंडसम नज़र आएगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर कुंवारा था, और डॉक्टर ऑल्सो, एंड अ डॉक्टर ऑल्सो, और एक डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैं मिरर में देखता हूँ और स्माइल करता हूँ।
It was an attractive smile. My smile was very attractive, fascinating. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face. Then the doctor made one more earth-shaking decision, very important decision. And what was that? He would always keep the attractive smile on his face. कि वो जो है उस अट्रैक्टिव स्माइल को अपने फेस पर हमेशा रखेगा. टू लुक मोर हैंडसम बिकॉज दिस स्माइल्स makes him this smile makes him more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on the top of it, and he exaggerates himself now that he was a bachelor and a doctor too on the top of it. और सबसे बड़ी बात क्या थी, वो एक डॉक्टर था. सो इट्स द राइट ऑफ द डॉक्टर टू बी हैंडसम. और जो है हैंडसम होना जो है किसी डॉक्टर का राइट होता है. सो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वहाँ पर प्रेजेंट कर रहा था. अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम द अबव. दोबारा से वही नॉइज जो ऊपर से आती है. आई गोट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम. मैं खड़ा हो गया और कमरे में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया. देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी. फिर एक और जो है अच्छा सा प्यारा सा विचार मेरे दिमाग में आता है. आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा. आई वुड गेट मैरिड टू वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी. मैं एक ऐसे वीमेन डॉक्टर से जो है शादी करूँगा जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा. एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और बहुत अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस होगी, अच्छी डॉक्टर होगी. शी हैड टू बी फैट, बट देर वॉज अ कंडीशन दैट द लेडी शुड हैव बी फैट. औरत जो है वो मोटी होनी चाहिए फॉर अ वैलिड रीजन. एंड देर इज़ अ वैलिड रीजन बिहाइंड दिस थॉट. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. And now the doctor says that my wife should have be fat, because if he made some silly mistake and he needed to run away from his wife, then she should not be able to catch him. और जो है उसने क्या रीज़न दिया इसके पीछे कि अगर कभी मैं कोई गलती कर देता हूँ और वो मेरे पीछे भागती है तो वो इतनी मोटी होनी चाहिए कि वो मुझे कैच करने में जो है एबल ना हो सके, कैपेबल ना हो सके, और वो मुझे पकड़ ना पाए. सो इट वॉज अ वेरी silly thinking of the doctor. He was it is showing the humorous quality of this story. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. और इन्हीं विचारों के साथ जो है मैं अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के सामने. देर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबोव. अब जो है ऊपर से कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी. सडनली देर केम आउट डल थॉट एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड. और फिर अचानक से जो उसको एक आवाज़, नीचे गिरने की आवाज़, रबड़ के नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई रबर ट्यूब जो है ग्राउंड पर आकर के गिरी हो. श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट. और वो सोचता है कि कुछ भी जो है चिंता करने की बात नहीं थी. इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक. और फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा मुड़ के देख लेता हूँ कि क्या गिरा है. नो सूनर हैड आई टर्न दैट देन अ स्नेक, फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर. नो सूनर, जैसे ही मैंने जो है अपनी गर्दन को घुमाया पीछे देखने के लिए, वैसे ही जो है एक मोटा सांप रेंगते हुए मेरी चेयर से जो है मेरे कंधों पर आकर के लैंड हो जाता है. इट मीन्स बोथ द इंसिडेंट्स हैपेंड साइमल्टेनियसली. ये दोनों इंसिडेंट एक साथ होते हैं. जैसे ही वो अपनी गर्दन घुमाता है तो एक सांप जो है उसको अपने कंधे पर लैंड होता हुआ नजर आता है. द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस. सांप की लैंडिंग और मेरा जो मुड़ना वो एक समय पर हुए थे. आई डिडंट जंप, लेकिन मैं जो है ना तो उछलता हूँ ना ही मैं कांपता हूँ. आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट एंड आई डिडंट ट्राई टू क्राई. और मैंने चिल्लाने की भी जो है कोशिश नहीं की. देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग. मेरे पास ऐसा कुछ करने का टाइम नहीं था. द स्नेक स्लिदर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबोव द एल्बो.
और सांप जो है वो मेरे कंधे से नीचे खिसक कर आ जाता है रेंगते हुए, और कहाँ पर कॉइल कर लेता है अपने आप को, अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबो द एल्बो, उसकी एल्बो से ऊपर जो है उसकी बाजू पर अपने आप को फोल्ड कर लेता है। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches अवे फ्रॉम माई फेस, और जो सांप का हुड था, जो फन था, वो पूरा फैला हुआ था और ये हार्डली जो है उसके फेस से 3 या 4 इंच की दूरी पर था। So it was very frightening scene of this chapter. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. ये जो है कहना सही नहीं होगा कि मैं जो वहाँ पर अपना पूरा सांस कंट्रोल किए हुए बैठा था। आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, लेकिन मैं कैसा हो गया था, मैं बिल्कुल एक पत्थर के जैसा हो गया था। इट वॉज लुकिंग दैट आई डोंट हैव एनी blood and flesh, so I was looking like a stone because he was not moving from his place, he was not jumping, not trembling, not tried to cry, so it was showing that he was turned to stone. But my mind was very active. Now he says that outwardly or physically I was turned to stone, but inside I was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flash. जो दरवाज़ा था वहाँ पर जो बिल्कुल अंधेरा था, चारों तरफ जो है कमरे के पूरा कमरा जो है अंधेरे से घिरा हुआ था, क्योंकि उसकी रूम में जो है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। और इन द लाइट ऑफ द लैम्प, इस जो लैम्प की लाइट थी उसमें जो है वो कैसा नज़र आ रहा था, आई सेट लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, मैं जो है एक स्टोन इमेज के जैसा नज़र आ रहा था, पत्थर की मूर्त के जैसा जो है नज़र आ रहा था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, और फिर मुझे महसूस हुआ किस चीज़ का, एज यू ऑल नो वेन एवर वी आर इन अ ट्रबल, वी फेस सम ट्रबल, वी रिमेंबर गॉड एट दैट मोमेंट, एंड देयर ऑल्सो doctor was in a trouble. He was facing the problem, a big problem we can say, because he was coiled by his arm was coiled by a big black cobra, and at that time he feels the presence of the God in the universe. God was there, भगवान है। जब भी हम कभी किसी मुसीबत में फंसते हैं तो सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं, और ऐसा ही जो है डॉक्टर के साथ भी हुआ। जब डॉक्टर के पास इतनी बड़ी मुसीबत आ जाती है तो उसको भी जो है भगवान के होने का एहसास होता है। क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को के रचयिता के बारे में वो सोचते हैं कि भगवान यहाँ हैं। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट, और वो सोचता है कि अगर मैं कुछ कहूँगा और इस सांप को ये पसंद नहीं आया तो मुझे काट लेगा और मुझे मार देगा। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। इसीलिए जो है डॉक्टर क्या करता है, इमेजिन करता है कि जैसे वो जो है बड़े चमचमाते शब्द अक्षरों में जो है क्या लिख रहा है अपने हार्ट पर, क्या लिख रहा, ओ गॉड, हे भगवान। इट मीन्स ही वॉज रिमेंबरिंग द गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी लेफ्ट आर्म में जो है कुछ दर्द मुझे महसूस हो रहा था। इट वॉज एज इफ अ थिक लिडन रॉड एंड इट वॉज लुकिंग दैट माई आर्म इज़ लाइक अ थिक लिडन रॉड। मेरी आर्म जो है वो कैसी हो गई है, एक लिडन रॉड की जैसी हो गई है। नो अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, और वो फिर क्या बोलता है कि नहीं नहीं, एक ऐसी रोड जो कि मोल्टन फायर की जो है बनी हुई है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लावे की तरह है। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, जो कि धीरे धीरे लेकिन बहुत स्ट्रांगली मेरी आर्म को जो है क्रश कर रहा था। क्योंकि जो है उसकी बाजू पर पूरी तरह से इतना बड़ा भयंकर सांप जो है लिपटा हुआ था, जिसकी वजह से जो है उसकी बाजू कैसी हो गई थी, उसकी बाहें जो है वो पूरी तरह से टाइट और बहुत ज़्यादा गर्म उसको महसूस हो रही थी, जैसे कोई रॉड है, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी पावर जो है वो ख़त्म होती जा रही है। और इसके बाद क्या सोचता है, द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, जैसे उसकी बाजू की जो है सारी शक्ति जो है वो
ख़त्म हो गई है। व्हाट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता था। एट लास्ट एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मेरी हल्की सी भी मोमेंट पे जो है सांप मुझे काट लेता। डेथ लग्ड 4 इंचेज अवे, मृत्यु मेरे से जो है केवल 4 इंच दूरी पर थी। बिकॉज द हुड ऑफ द स्नेक वॉज जस्ट 3 or 4 इंचेज अवे फ्रॉम हिज फेस, और क्योंकि जो सांप का हुड था, जो फन था, वो उससे केवल 3 और 4 इंच की दूरी पर ही था, इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ही वॉज नॉट मेकिंग अ स्लाइटेस्ट मूवमेंट इवन बिकॉज ही फेल्ट दैट हिज स्लाइटेस्ट मूवमेंट वुड स्ट्राइक हिम। Suppose it struck, what was the medicine I had to take? Now the doctor is imagining that if the snake would struck, then what medicine should I take at that time? There were no medicines in the room, but he was not having any medicine in his room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. Now he realizes that he was a poor, foolish and stupid doctor. In the starting of the chapter, he was feeling proud on himself and saying that I am a intelligent and very handsome doctor, and again and again he was praising himself for his beauty and for his occupation as a doctor. But now there is a second point, turning point in his thought came with that when he was thinking that what medicine should I take after the snake bite. But he came to know that he doesn't have any medicine in his room. Now he thinks that I am a stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. मैं अपना खतरा भूल गया और अपने आप पर जो है हल्के से मुस्कुराता हूँ कि क्या डॉक्टर हूँ मैं कि मेरे पास कोई दवाई भी नहीं है। It seemed as if God appreciated that. और ऐसा लगा कि भगवान ने भी जो इसको अप्रिशिएट किया कि मैं कोई अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, सांप अपना सिर घुमाता है। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन, सांप जो है शीशे में देखता है खुद को और उसको अपनी परछाई वहाँ पर नज़र आती है, अपनी तस्वीर उसको नज़र आती है। आई डोंट क्लेम दैट इट वॉज़ द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि ये कोई पहला सांप होगा जिसने अपने आप को शीशे में देखा होगा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन ये बात निश्चित थी कि सांप जो है शीशे में खुद को देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? नाउ वन थॉट केम इन हिज माइंड दैट वॉज द स्नेक एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या सांप अपनी खुद की सुंदरता को एडमायर कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टेच और यूजिंग आई शेडो और मस्कारा or wearing a vermilion spot on its forehead? Now the doctor thinks that was the snake making an important decision like him? जैसे डॉक्टर ने जो है important decision लिए थे अपने बारे में कि he will grow small thin mustache and he would shave daily to look more handsome, and now he thinks that snake is also making some important decisions about growing mustache and using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot. Vermilion means सिंदूर लगाने की जगह, अपने माथे पर जो है सिंदूर लगाने का एक फिक्स स्पॉट जो है वो ढूंढ रहा है कि कहाँ पर लगाना चाहिए। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि वो अगर मुस्टेज के बारे में सोच रहा है तो वो वर्मिलियन या आई शेडो मस्कारा के बारे में क्यों सोच रहा है? बिकॉज हियर द डॉक्टर इज unknown about his gender, its gender. He doesn't know that what is the gender of this snake, so he uses both the decisions, he uses both the lines that if it is a male snake, it is deciding about to grow a mustache, and if it is a female, she is deciding about eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead. अगर ये मेल है तो ये मुस्टेच उगाने के बारे में सोच रहा होगा, और अगर ये फीमेल स्नेक है तो ये जो है किसके बारे में, मस्कारा यूज करने के लिए, आई शेडो कहाँ कैसे लगाएं, और फिर वर्मिलियन स्पॉट जो है अपने माथे पर जो है कहाँ सिंदूर लगाना सही रहेगा, ये सब जो है वो डिसाइड कर रहा है। आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन,
what sex was the snake, was it a male or female. Now doctor clarifies this कि he was not certain about its sex, was it a male or female. वो उसके सेक्स के बारे में, उसके जेंडर के बारे में जो क्लियर नहीं था, सर्टेन नहीं था कि जो है सांप फीमेल है या मेल है. आई विल नेवर नो, मुझे पता भी नहीं चलेगा. फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लीदर्ड इन टू माई लैप, क्योंकि जो है सांप ने अपने आप को अनवाउंड कर दिया और उसकी बाजू से हट करके वो धीरे धीरे रेंगते हुए उसकी गोद में जा कर के बैठ जाता है. फ्रॉम देयर इट क्रैप्ट ऑन टू द टेबल, और वहाँ से वो जो है रेंगते हुए टेबल पर चला जाता है. एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और मिरर की तरफ जाता है. परहैप्स इट वॉन्टेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, शायद जो है सांप भी अपने आप को जो है बहुत नज़दीक से शीशे में देखना चाहता था. आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब मैं एक जो है इमेज, एक मूर्त जो है नहीं रह गया था जो कि पत्थर की, ग्रेनाइट की मूर्त के जैसा. आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अब मैं एक जीता जागता इंसान बन गया था. जैसे ही सांप मेरे ऊपर से हटा, मेरे अंदर जान वापस आ गई थी. फ्लैश और ब्लड जो है मेरे अंदर वापस से आ गए थे. स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी मैंने अपने सांस को रोके रखा. आई गोट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा. आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वेरांडा, और मैं चुपचाप जो है दरवाजे से अपने वरांडा में जाता हूँ. फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और वहाँ से जो है मैं अपने आंगन में जाता हूँ, और वहाँ से जितना तेज़ मैं भाग सकता था, जितनी मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, उस ताकत से मैं जो है वहाँ से भाग लेता हूँ. सो वी हैव completed our chapter till here, up to here. I'm going to complete this. Phew, each of us heaved a sigh of relief. Oh, now the point came to the circle of his friends where he was telling his experience of facing a snake, and all his friends had a sigh of relief. वो सब जो है बड़े रिलैक्स फील करते हैं जब उसने बताया कि वो वहाँ से भाग गया सांप से बच के. Somebody asked, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, और कोई जो है उससे डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, क्या तुम्हारी वाइफ जो है बहुत मोटी है. नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, नहीं, भगवान की मर्जी कुछ और थी. माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रेडी पर्सन, मेरी जो जीवन साथी हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतली, और रेडी किसको बोलते हैं, जो स्केल्टन जैसा, बहुत ही ज़्यादा पतला जो है व्यक्ति, उसके लिए यूज़ किया जाता है. रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, जैसे किसी हवा के झोंके के साथ वो उड़ सकती थी, हिल सकती थी. समवन एल्स आस्क्ड, किसी दूसरे दोस्त ने उससे पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रन डिड द स्नेक फॉलो यू, दैट व्हेन यू रन फ्रॉम योर रेंटेड रूम डिड द स्नेक फॉलो यू, जब आप अपने उस कमरे से भागे तो क्या सांप ने आपको फॉलो किया. एट दिस पॉइंट व्हाट द डॉक्टर सेज, द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रन एंड रन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, मैं दौड़ता ही रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया. इमीडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, और तभी मैंने तुरंत जो है अपनी पूरी बॉडी पर जो है तेल लगाया और फिर वहाँ पर मैंने स्नान किया. आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, और मैंने जो है साफ सुंदर कपड़े पहने. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. And next morning, when I woke up at 8:30, I took my friend and one or two others to my room to bring my belongings back from that room. मैं अपने सामान को जो है वहाँ से वापस लाने के लिए जो है उनको लेकर के जाता हूँ. But we found we had little to carry. लेकिन वहाँ जाकर हमने क्या देखा कि हम ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था. Some thief had removed most of my things. किसी चोर ने जो है मेरी सारी ज़्यादातर चीज़ें जो है चुरा ली थी. Because when he ran from his room, he didn't close the door. जब वो अपने कमरे से भागा था तो उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, और इसी वजह से जो है रात में किसी चोर ने जो उसका सारा सामान चुरा लिया.
द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, पूरा रूम जो है साफ़ हो चुका था, बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, लेकिन सच में पूरा रूम साफ़ नहीं हुआ था। चोर ने एक ऐसी चीज़ जो है पीछे छोड़ दी थी मेरी फाइनली इंसल्ट करने के लिए, मेरी बेइज्जती करने के लिए। वट वॉज दैट, आई आस्क्ड। नाउ द नरेटर आस्क्ड हिम वट वॉज दैट। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, मेरी गंदी सी जो है बनियान उसने वहीं पर छोड़ दी थी, मैली बनियान। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीन लाइनेस, शायद जो चोर था उसके अंदर सेंस ऑफ क्लीन लाइनेस थी, यानी कि साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखता था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, वो दुष्ट इसको ले जा सकता था, एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, और इसको साबुन और पानी से धोने के बाद यूज कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, नाउ आई आस्क्ड हिम हैव ही सीन द स्नेक नेक्स्ट डे, क्या उसने उस सांप को अगले दिन देखा। द डॉक्टर लाफ्ट, डॉक्टर हंसते हैं। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने उसके बाद से कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, ये ऐसा सांप था जो अपनी ब्यूटी को जो है से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था, और जिसने अपनी ब्यूटी को देखने के लिए मुझे छोड़ दिया था। और ये जो है उन्होंने अपनी पूरी एक्सपीरियंस, अपना जो स्टोरी है वो हम सब के सामने बताई। So it was all about this chapter. Thank you.